Yeah. Hello, sir. Hello, Adarsh. How are you? I'm fine, sir. Audio is clear? Yeah, your voice is clear. How about mine? Yeah, you're good. Your voice is good, sir. Oh, Hearable. nice. Very nice. Okay. So, sorry for the delay, guys. There is some technical glitch. So now we can start. Okay, sir. First of all, welcome to the Indian Navy Lover presents the Sea Warrior Tales. Thank you, Adarsh. Thank you for welcoming me and inviting me onto your channel, this Instagram page. You have got huge number of fan following on your page, and that is, it's a applaudable thing कि आप इतने लोगों को यहाँ पे इंस्पायर कर रहे हैं, आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उनको अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं लोगों की Yes, sir. एंड एक चीज के लिए मैं जितने भी अभी चैनल ये हमारे लाइव सेशन जो देख रहे हैं उन सभी से आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच वी डिलेड दिस लाइव सेशन फॉर अबाउट 30 odd minutes but now I am here and we can have our conversation on and whatever is our requirement or whatever is the question and answers you can ask me whatever you want to do. I'll try to answer all of your queries जिससे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं लाइव सेशन के उनको भी हेल्प मिले. बिल्कुल सर, ताकि हम उनको और इंस्पायर कर सकें. या Right. Okay, guys. So let me introduce to all of you about sir. So, guys, he is Lieutenant Commander Rangpur Patanwala. He's a retired naval officer, and now he's still serving the nation. Now he's a security manager in Canara Bank, posted in Udaipur branch. So, thank you, sir. Thank you so much for joining us today. Thank you, Adarsh. Thank you, Indian Navy lover, and all lovers of Indian Navy lover who are following this Indian Navy lover, right? Okay, sir. So let's begin. Our first question is, तो धावा बोलते हैं फिर. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. Okay, sir. First question is, I know about your past professional life, right? So none had been to the defense services from your family, and neither you had been an NCC cadet. I mean, sir, how you get motivated to join Indian Navy? Cause your journey to go for Indian Navy, break stereotypes that one who is from a his non-defense background is totally hardcore civilian. So how it will be possible, sir? ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, पॉसिबल कैसे हुआ? आप ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ कोई डिफेंस से दूर दूर तक किसी का नाता रिश्ता ना हो. Yeah. So that's true कि मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री का नहीं है. None of my family members had gone to military services or not even they are not even aware about the military services. Yes, sir. And in fact, I also was untouched from the military services till my my studies, my professional courses. Uh, Okay, sir. once बचपन में 99.99% बच्चे जो होते हैं उनका फेवरेट टॉय होता है गन. Exactly. इफ यू हैव नोटिस्ड Yeah, yeah, राइट. yeah. हर बच्चों को Totally बंदूक agree. बड़ी पसंद होती है और मुझे भी बड़ी पसंद थी. मुझे गन से खेलना बड़ा अच्छा लगता था. इनफैक्ट इफ यू विल सी माय वन ऑफ माय फेवरेट जो है वो भी दैट इज आल्सो विद द गन. Exactly. बचपन चला गया, धीरे धीरे हम बड़े हुए और पेरेंट्स ने पढ़ाई वढ़ाई कराई हमारी सारी पूरी. हमने एजुकेशन की, कैरियर की, स्कूल गए, कॉलेज गए. तब तक दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं या करनी चाहिए. Okay. Once I finished my graduation, and I joined banking industry. And when I was working with bank, within 30 to 60 days, 1 or 2 months, I decided that this is not the life which I want. Exactly. ठीक है, this is not the life which I want. It's a 9 to 5 job and I am not made for it. मैं नहीं बना हूँ इस चीज के लिए. तो देन आई डिसाइडेड कि व्हाट टू डू. आई थॉट अबाउट इट कि क्या करना चाहिए एंड Exactly. व्हाट शुड बी आवर कंट्रीब्यूशन, व्हाट शुड बी आवर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन. हम इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए. बिल्कुल. I started doing the research work.
because at that point of time the broadband services were not available. हमारा Exactly. टाइम पे उस टाइम पे डायल अप चलता था, डायल अप, इफ यू I know. रिमेम्बर। तो उस पे हम रिसर्च करता था, मैं रिसर्च करता था बैठ के, एंड देन लेटर आई केम टू नो कि हाँ, यस, देयर इज अ यू नो आर्म फोर्सेस जो हैं वो हमारे देश की सबसे बेस्ट सर्विसेज हैं, जहाँ पे कोई भी यंगस्टर जाके ज्वाइन कर सकता है अगर वो केपेबल है, उसके अंदर वो कैलिबर है, और वो अपनी कंट्री को प्राइड के साथ, Sir, रिस्पेक्ट के साथ सर्व कर सकता है। exactly. तो दैट इज द बेस्ट पार्ट, राइट, दैट इज द बेस्ट पार्ट। देन आई थॉट कि आई शुड ट्राई वंस एटलीस्ट वंस, Yes, बिकॉज sir. अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो मेरे दिल में हमेशा रह जाएगा कि यार मैंने भी ट्राई नहीं किया इस चीज के लिए। हाँ, एक मलाल रह जाएगा क्या? हुए सिलेक्शन हो, सिलेक्शन ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई वंस। Yes, sir. So Never stop I, trying. yeah, so I applied, मेरे सामने जो सबसे पहली एंट्री आई वो आई शॉर्ट सर्विस कमीशन, और मैंने उसमें अप्लाई किया। इट वाज फॉर एग्जीक्यूटिव ब्रांच जनरल सर्विस। तो Yes, आई sir. अप्लाइड फॉर and I was shortlisted. Later, I was called for SSB at Bangalore. It was my SSB first Bangalore. SSB. Yeah, 12 SSB Bangalore. It I was my remember. it was my first attempt, and you know, धीरे धीरे when I was going with the flow, I was getting motivated. I was Exactly. getting motivated, and my entire motivation had come from step by step, धीरे धीरे, not in a बिल्कुल. sudden, धीरे धीरे आया, धीरे धीरे, right? और समय मुझे के पता साथ नहीं में. आप लोग, हाँ, आप लोगों के साथ या और यंगस्टर जितने भी हमें देख रहे हैं, आई डोंट नो कि सभी यंगस्टर्स के साथ में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, बट इन बिटवीन एक मूवी भी आई, लक्ष्य, राइट? Yeah, that's a one of Yeah, the motivated movie for aspirants, sir. yeah. In between, this movie had also come, and I saw this movie and I decided कि यार अब तो दुश्मन मेरे हाथ में मरे, ठीक है? अब अब तो ऋतिक ने भी ज्वाइन कर लिया, मैं तो करूंगा ही. या अब तो मुझे जाना ही है। तो बिल्कुल. आई वेंट विद द फ्लो, आई वेंट टू 12 एसएसबी बैंगलोर। यस उसके सर. बाद की कहानी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब आप मेरे से पूछोगे। बट ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मोटिवेशन होता है, एकदम से नहीं आता है, एक घुट्टी नहीं है ये, कोई घुट्टी नहीं है कि आपने गोली और बिल्कुल. पी गए और देन यू आर मोटिवेटेड एंड यू वेंट कि हाँ भाई मैं सब कुछ कर लूंगा। धीरे धीरे यू हैव टू थिंक, यू हैव टू रियलाइज व्हाट योर कैपेबिलिटीज, what is your requirement, what you want to do, you have to focus yourself, right? Yes. So that's why in spite of not being anybody from my family into the military services, Yes, sir. I went there because my aim was different. In fact, मैंने अपने family members को बताया भी नहीं था जब मैंने I had applied, right? I never told them. रिएक्शन कैसा था सर? What's the reaction? Yeah. So once that SHB call letter came to my house, so my father gave me a call in the office and he asked me, "You had given this SSB का application. Your SSB application had come. You have to go." और एक बार तो ऐसा हो गया कि मुझे उसको एक्सटेंड करना पड़ा, राइट, बैच को अपने। तो बट द सेकेंड टाइम मैंने बैच जो मैंने एक्सटेंड किया उसमें तो मैंने बोला कि अब जाना ही है, इसको अब तो मिस जाना ही नहीं है. करना किसी भी हाल में, अभी नहीं तो तो जाना कभी ही नहीं है। है. तो दिस वाज माय मोटिवेशन, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, फोकस्ड, watching motivational literature, watching motivational videos and movie, and looking at the surroundings की आप इस एटमॉस्फेयर में, इस कंट्री में सबसे बेस्ट अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हो। यस सर, बिल्कुल. अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं हो इंडिया के, देन पॉसिबिलिटीज ही नहीं है. अगर आप आर्म फोर्सेस भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं. ट्रू ट्रू, क्योंकि आजकल ज्ञान देने वाले तो काफी भरे पड़े हैं सर, इंस्टाग्राम हो या बिल्कुल ट्विटर हो, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सही ज्ञान कोई नहीं दे रहा. ओके सर, सो टेल अस अबाउट योर एसएसबी एक्सपीरियंस. 12 एसएसबी बैंगलोर. अच्छा, हाँ, इफ आई टेल यू माय एसएसबी एक्सपीरियंस ना तो यू विल लाफ, ठीक है? बिकॉज आई टेल यू व्हाट हैपेंड.
फाइनली आई डिसाइडेड, आई टोल्ड यू कि पेरेंट्स को तो बताया नहीं था, तो बिल्कुल। पेरेंट्स वाज कि हाँ भाई चलो अब जाना है, ट्रेन की टिकट बुक हो गई, जाने के लिए रेडी हो गए एसएसबी के लिए। बट ट्रेन में बैठने तक आई वाज नॉट अवेयर कि एसएसबी में होता क्या है। होता आई वाज क्या है? ओनली अवेयर अबाउट कि एसएसबी इज एन इंटरव्यू इंटरव्यू। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड इट इज कंडक्टेड टू रिक्रूट ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, राइट। बिल्कुल। और ये 5 से 6 दिन 7 दिन खिंचता है, आगे जाता है, राइट। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मेरे एक्सटेंड फादर है होता है। ना, हाँ, तो मैं जब ट्रेन में बैठ रहा था तो मेरे फादर मेरे लिए एक छोटी सी एक इतनी सी बुक खरीद के लाए, एसएसबी की उसमें नॉलेज थी, एंड ही गेव मी ओके। दैट बुक एंड ही टोल्ड मी कि प्लीज रीड इट, क्योंकि ये आपके अब जब आप जा रहे हो तो आप ये काम आएगी आपके। तो बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको पढ़ नहीं पाया, क्योंकि ट्रेन में नींद बहुत आती है। और जब एसएसबी पहुंचे तो वहां पे टाइम शेड्यूल इतना टाइट होता है कि वो आपको कुछ करने समय नहीं नहीं देता देते। सर। ठीक है, हाँ, बिल्कुल, यू टाइम ही कैन नहीं नॉट मिलेगा डू, आपको। राइट। सो वो बुक मेरे कपड़ों के नीचे ही रह गई, जो पीटी शूज और पीटी ट्रैक और जो भी खरीदा था उनके नीचे, सबसे नीचे रह गई, बॉटम में। ओके। बट आई रिमेम्बर जब मैं जा रहा था उससे पहले मैंने एक गुरु ज्ञान लिया था। एक कमांडर साहब थे उस टाइम पे, ऑर्कुट चलता था तो आई वाज ऑन ऑर्कुट। तो आई हैड आस्क्ड हिम कि सर व्हाट शुड आई डू इन एसएसबी। तो ओके। he had replied me, you don't have to do anything, just be what you are, एग्जैक्टली। बी just योर be what सेल्फ। you are, don't fake yourself, don't do anything which will tell them, मतलब आपके मुंह से पता चल जाएगा कि आप ये चीज फेक कर रहे हो, आप ये नहीं हो बिल्कुल। असल में, राइट। एंड दैट वाज माय मोटो, कि जब मैं जा रहा हूं तो आई हैव टू बी व्हाट आई एम। अगर मेरे अंदर कैलिबर है, मैं इतना कॉम्पिटेंट हूँ कि मैं आर्म बिल्कुल। फोर्सेस में रिक्रूट हो सकता हूँ, जो मैं हूँ, तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। बिल्कुल। अदरवाइज आई विल नॉट गेट सिलेक्टेड, दैट्स इट। तो दैट वाज माय एम, आई वेंट देयर, शॉर्ट लिस्टिंग हुई, और फर्स्ट डे जो एग्जाम ग्रुप डिस्कशन होते हैं वो सब हो गए, उसमें भी हम शॉर्ट लिस्ट हो गए। वी रीच देयर फॉर अबाउट 128 और आई थिंक 138 कैंडिडेट्स वर देयर। And ओके। then finally first day shortlisting के बाद में there were only 42 left, right? ओके। So बाकी सबका तो वहीं टाटा बाय बाय हो गया, जो 42 बचे बस। उनको ओके। another they had to survive for another 5 days. Now there were many tests जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे, मैंने कभी देखे भी नहीं थे, वो तो भी होते हैं वो बस। सब, हाँ, तो वो सब करे तो। बट आई आई रिमेम्बर एक जीटीओ ग्रुप टास्क होता है, जो ग्राउंड टास्क। जिसमें जिसमें देयर विल बी अ ऑफिसर जीटीओ हु विल गिव यू अ बल्ली, प्लैंक एंड रोप, और उसमें एग्जैक्टली। नीचे मिट्टी में ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स टाइप के बने होते हैं, एंड देन ही विल टेल यू कि जिगजैग जैसे होते आप हैं। या अपनी टीम में से यू सेलेक्ट एनी 2 पर्सन, और उनको आप इंस्ट्रक्ट कीजिए, और वो आपके इंस्ट्रक्शंस देख के दे फॉलो विल करें। कैरी आउट द एंटायर पजल एंड दे विल रीच द अदर साइड विदाउट फॉलिंग बिलो, राइट, वो गिरेंगे नहीं नीचे। जी। तो now we were 10, we were in a batch of 10, we were divided in a batch of 10 chess numbers. तो वो 10 चेस्ट नंबर्स में से हुआ ऐसा कि मेरा सबसे लास्ट में था, राइट। और मेरे से पहले वाले जितने भी थे मोस्टली सबने अपने 2 टीममेट्स में से एक मुझे रखा। ओके सर। 2 मेरे बेस्ट बडीज थे, जो एसएसबी में मेरे बेस्ट बडीज बन गए थे। एक, आई फॉरगॉट देयर नेम्स, वो एक मेरा लुधियाना का बेस्ट बडी बना था, और एक था अलवर का, राजस्थानी, ठीक है। तो दिस अलवर गाय वाज अ बिट हैविंग अ हैवी। वेट, थोड़ा वेट ज्यादा था उसका, वेट ज्यादा था, तो उसको कोई चूज नहीं कर रहा था। अब और लुधियाना वाले को भी एक तो ग्रुप्स जेट। नहीं बुलाया, तो दे सो माई साइड के भाई तू तो बुला लेना हमें, ठीक है। और कोई तो क्योंकि पूछ नहीं रहा भाई।
क्योंकि वहां पे ना एक माहौल ऐसा बन गया था, मतलब पीपल वर टेलिंग ईच अदर कि दे विल गिव यू, जीडीओ विल गिव यू नंबरिंग on the basis of कि how many times you have been called by the other candidate also. I was not aware Okay. about that, but few of them told this कि हाँ भाई ऐसा भी होता है। तो then they were shocked कि यार हमें तो बुलाया नहीं किसी ने, अब हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? तो उन्होंने मुझे बोला भाई तू तो बुला लेना। तो मैंने कहा हाँ यार मैं पक्का बुलाऊंगा, तुम मेरे जिगरी हो, तुम्हें बुलाऊंगा ना। मैं गया, मैंने उन दोनों को बुला लिया, मैंने जीटीओ को बोला कि सर दीज पीपल विल कम फॉर माय एज माय असिस्टेंट एंड दे विल कैरी आउट व्हाटएवर आई विल टेल। तो आई स्टार्टेड इंस्ट्रक्टिंग। नाउ बोथ ऑफ देम वर डूइंग वेल, बट बिकॉज जो दूसरा वाला हमारा अलवर का दोस्त था वो थोड़ा अलवर का यार। वेट ज्यादा था उसका, तो वो बैलेंस नहीं बना पाता था। ओके। उसको प्लैंक पे से और पल्ली पे से क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, राइट। ओके। तो वो एक दो बार गिर गया। ओ भाई। अब वो गिरा, अब वो गिरा तो गिरे नंबर का मुझे जीटीओ जीटीओ देख रहा था। बिल्कुल। तो जीटीओ, बट आई स्टिल इंस्ट्रक्टेड हिम, आई नेवर टोल्ड हिम कि यू लीव माय प्लेस, ठीक है। आई कंटिन्यूड विद हिम कि यू डू व्हाटएवर यू कैन, बट आई ओके। हैव फेथ इन बोथ ऑफ दैट्स यू, ग्रेट, यू डू। दैट्स ग्रेट, ऑनेस्ट तो आंसर। देन जीटीओ रियलाइज्ड कि यार ये बार बार इम्बैलेंस होके गिर रहा है, इसका वेट भी ज्यादा है। तो ही कॉल्ड मी कि चेस्ट नंबर, आई वाज हैविंग चेस्ट नंबर 33 आई गेस, तो ही कॉल्ड मी, चेस्ट नंबर 33 प्लीज कम हियर। तो आई वेंट देयर, ही टोल्ड मी, ही गेव मी एन ऑप्शन कि इफ यू वांट आई गिव यू ऑप्शन, यू कैन विड्रॉ वन ओके। चैप फ्रॉम दैट, एक से ही आप पूरा कर दो और आप भी बीच में चले जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ आप भी उसमें अगर आप चाहते हो तो। चाहते हो तो। So now I was in a dilemma कि whether I should do it or not, because if I do this now, back off करता हूँ अगर मैं अपने बंदे से, तो it is not good. So I straight बिल्कुल। away denied. I straight away denied and I told GTO कि sir no, I will continue with them. I will not withdraw. तो धीरे धीरे करके slowly I took my time, they took their time and we completed the task, right? ओके। After this task, when everybody was saying कि भाई सब जाओ अब हो गया तुम्हारा task, तो GTO called me again. So GTO asked me, मतलब he spoke to me for about 15 to 20 minutes. He asked me about my what I am doing, from where I have come. So I briefed him about that I am working with the banking sector. So he, at that point of time, there was one crisis going on that ICICI Bank going to shut down. करके तो he asked me everything कि what is that? Do you have a knowledge or not? So I told him everything. Later he asked me कि from which coaching center you have taken coaching for SSB. ओके। So I told him कि sir I haven't read a single page of SSB. Forget about coaching, I haven't read a single page of SSB. Then he got shocked. तो यार अच्छा, तो मैंने कहा yes कैसे? sir. तो उसने बोला ठीक है ओके गो। तो he told me go. So then I went away. उसके बाद लेटर आई केम टू नो कि वो जो हमारे जीटीओ थे, ही वाज अ कमांडर सबमरीन फ्रॉम नेवी। ओ मरीनर। ओके। तो बाद में आई केम टू नो कि वो चीज के लिए मुझे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले थे कि ही कंटिन्यूड विद हिज चैप्स, ही नेवर विथड्रू देम। उन्होंने विथड्रॉ ओके। नहीं किया उनको। दैट्स द क्वालिटी ऑफ ऑप्शन तो उनके पास लीडरशिप। है। Yeah. So this is one incident which I remember. The second thing which I remember about 12 SSB is Thomas का सुबह सुबह उठो उठो है ना वो वो तो होता ही है। जितने जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उनमें से अगर कोई भी 12 एसएसबी में गया है तो वहां पे एक मिस्टर उसको पता थॉमस होते थे जो होगा। सुबह सुबह टाउन में आके उठाते थे सबको। उठो उठो, एक अलग ही उनकी राग में वो लगे उठाते टोन थे। रहता है। हाँ, उसके अलावा भी एसएसबी में काफी चीजें थी जो मेरे लिए नई थी, मैंने वहीं पे सीखी थी। और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जिनसे मैंने राय मशवरा किया था, जिनसे मैंने गुरु ज्ञान लिया था, वो गुरु ज्ञान बहुत हद तक मेरे लिए अच्छा था। और whatever he told me, I would like to tell the same thing to everyone. You have to be yourself. Do not fake yourself in SSB. ठीक है? And remember, जो
गीता में कहा गया है कि एक आइडल इंसान जो होता है, आइडल इंसान, वो कैसा होता है, तो आपको वही होगी। बिल्कुल सर। आप कभी गलत नहीं हो सकते, और अगर आप जब सही हो तो आप फेक नहीं करो, आप सब सही रखो, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। बिल्कुल सर, आई टोटली एग्री विथ यू। Okay, sir. So our next question is, when you joined Indian Naval Academy for इट training वॉज, purpose, then हाँ, हाँ, so sir, any funny incident happened from your academy days? We would love to hear it, sir. हाँ। अच्छा, अकेडमी, आई टेल यू ना, अकेडमी इज नॉट एट ऑल फनी। वहां तो वो इट तो इज, पूरे भरे पड़े किससे। academies are never funny. तो academy में all incidents or whatever is going on, training, discipline, your grooming, everything is planned, and it is, it makes you tough. It makes you बिल्कुल, tough. it So, makes you perfect man. yeah, yeah. It Exactly. teaches you a lot. It teaches you a lot. It gives कंट्री को जेंटलमैन जो है ना, वो वहां से मिलते हैं। So that's why बिल्कुल। we call uniform people are gentlemen, right? Legend। Yeah. अकेडमी के फनी इंसिडेंट्स तो बहुत हैं, जैसे कोई कभी भी किसी एक सर। एक आदमी से गड़बड़ हो जाती थी तो पूरे वही कोर्स सर। की बैंड बजती थी, ठीक है, तो हम सब उसके पीछे पड़ जाते थे कि भाई तेरे कारण हमारी बैंड बजी है, और कई तुम ऐसे तेरी होते थे ना जो बजाएंगे। समझ, हाँ अब तेरी बैंड बजाएंगे हम, ठीक है। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट होते थे। पर मुझे जो सबसे फनी इंसिडेंट लगता है वो इसलिए एक इंसिडेंट लगता है, पूरी ट्रेनिंग हो जाने के बाद, मतलब आई एंटर्ड एकेडमी, मतलब घर वालों ने देखा था कि हाँ भाई गोरा, थोड़ा सा रंग अच्छा है, बाल बड़े हैं, वेट अच्छा है। जब ट्रेनिंग पूरी हुई और पीओपी में पेरेंट्स आए देखने के लिए, तो द फर्स्ट इंटरेक्शन वाज डिनर, राइट, डिनर नाइट। तो डिनर हाँ नाइट में पेरेंट्स को छोड़ दिया था और हाँ हमें एक तरफ से बाद में लाके यूनिफॉर्म में छोड़ा। तो हाँ। पहचान ही ट्रेनिंग नहीं के बाद पड़ती। में ऑल लाइक सब एक जैसे ही थे और कोई एक पहचान में सेम। भी नहीं आ रहा था। तो व्हेन आई वेंट टू माय मदर, मेरी मम्मी को ढूंढ के मैं मम्मी के सामने जाके खड़ा हुआ, तो माय मदर कुडंट रिकॉग्नाइज मी। मेरी मम्मी मुझे पहचानी ही नहीं। मम्मी मुझे पहचानी ही नहीं। फिर ये मैंने तो बोला, हमारा लड़का नहीं है। मम्मी मैं हूँ। तो अरे ये क्या हो गया, हमने इतना खिला खिलू के भेजा था, ये तो पतला सा हो गया, इसके तो अंदर वेट ही नहीं बचा बिल्कुल भी, पूरा बाल दाल एकदम बाटी गए, चूरमा निकाल दिया इधर। बिल्कुल जीरो कट, एकदम बिल्कुल पतला, और एकदम पहचान में नहीं आने वाला। तो ये मेरे लिए बहुत फनी इंसिडेंट था। इसके अलावा तो बाकी सब है ना, फनी तो नहीं थे, हॉरिबल नहीं थे, लेकिन सीखने को हॉरिबल भी बहुत थी। मिला, या सीखने को बहुत मिला। एक्चुअली सी, एकेडमी में कोर्समेट्स होते हैं आपके साथ में, तो लाइफ है ना इतनी अच्छी होती है कोर्समेट्स के साथ में ना, आपकी सारे जो ट्रबल्स होते हैं वो मिट जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल नेवी सर। का एक ही मोटो है, वन फॉर ऑल फॉर ऑल फॉर वन। वो। ठीक है, एग्जैक्टली। तो आप क्या है, आप बराबर बांटोगे, प्रसाद जो है वो सब में बटेगा। सब में बटेगा। हाँ, एक की लगेगी तो करेक्ट। सबकी लगेगी, वही वाला है। हाँ, तो अगर मैं भी मिस्टेक करता हूँ तो सबकी बैंड बजेगी। बिल्कुल सर। ओके सर। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज, there were various operations you had participated for disaster relief. Mostly operations were in foreign navies. How both Indian Navy and foreign Navy cooperate in such situations? Any of your experience regarding exercise and operations? Yeah. So, see, now you have to understand कि Indian Navy is world's presently it's world's fourth largest navy, and Exactly. our Indian Navy is claimed to be a blue water navy, right? So blue water navy means that our ships can reach anywhere in the world in the ocean, right? Now, whenever we are exercising with any other foreign navy country, तो I'll tell you, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल हमारी नेवी है, सबसे ज्यादा बिल्कुल हाँ। प्रोफेशनल। and AFR में देखा and था for मैंने। that, yes, and for that even बड़ी बड़ी कंट्रीज की जैसे रशियन नेवीज एंड ऑल, ये भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं इंडियन नेवी ऑफिसर्स एंड डबल सेलर्स का, क्रेडिशन। राइट, बिकॉज our turnout, our fitness, our professional knowledge, our competence in
everything is brilliant. So our training values are such, our grooming is Exactly. such that we stand as a leader whenever we are doing an exercise. We stand as a leader. तो जब भी हम नेवी फॉरेन नेवीज के साथ में एक्सरसाइज करते थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन नेवी वाज इन अ रोल ऑफ लीडर एंड वी वर द वन who makes all the exercises, who conduct, who carry out, who executes all the exercises, and that is why these neighboring countries, at least neighboring countries, they rely on our navy because they have to keep themselves updated, and to keep themselves updated they regular exercise with us, with our navy, Yeah. Indian navy. तो उनको स्टैंडर्ड्स पता चल जाते हैं कि अभी हम किस स्टैंडर्ड पे हैं। इंडियन नेवी के साथ में एक्सरसाइज करके दे केम टू नो एट व्हाट स्टैंडर्ड, एट व्हाट लेवल दे आर, राइट? उनको सो दैट्स व्हाई दे पता कीप ऑन एक्सरसाइजिंग विद अस। यहाँ पता चल जाता है कौन प्रो लेवल पे है, कौन कहाँ है। या नॉट ओनली नेबरिंग कंट्रीज, हम बाहर से कंट्रीज से, मतलब और दूर दूर कंट्रीज की नेवीज भी आती हैं, सब आते हैं, बहुत लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए। ओके, एक्सक्यूज मी सर, वन मिनट, डीके शर्मा इज आस्किंग सम क्वेश्चंस। सर नेवी में बीएड रख सकते हैं, एंड सर मेरी भी एसएसबी 17 के अलावा प्लीज कुछ गाइडेंस, एक टिप दे दो सर, कोई भी, वही एक एसएसबी टिप है इसके लिए दे दो कुछ। 17 को बंदे, व्हाट इज द क्वेश्चन? 17 को एसएसबी है इस बंदे की, डीके शर्मा, तो एक टिप। टिप तो यही है कि आप अपना 100% दीजिए और प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही आप मेरी तरह मुंह उठा के नहीं जा सकते, आपको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना you have to reflect OLQs in SSB that you have officer like qualities, and that is going to be the reason for you being selected as an officer in Indian Navy or any Other armed force. Army or Air Force, right? Of what, and be yourself, don't try to show off Yeah. and all. True, correct. Okay sir, so our बीएड वाला क्वेश्चन, बीएड भाई तू ट्रेनिंग में जा, पूरा पता चल जाएगा। हम बीएड पूछ रहा है कि बीएड रख सकते हैं। बिल्कुल बीएड रख सकते हैं, बट I was not having beard when I was in Navy. I used to clean shave myself. But beard रखने का there is a regulation. You can have beard, but as per regulation, whatever regulation says कि इतने से इंच ज्यादा बाल नहीं होना चाहिए या इतने से इंच ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, वैसे ही रखनी है। तो अगर उसको मेंटेन कर सकते हो तो ही रखना, नहीं कर सकते हो तो मत रखना, बैंड बच जाएगी। नहीं तो फिर एक्स और जीआई रेडी रहते हैं उधर। अरे तो सब रेडी रहता है। ओके बेड सर, वाला दूर से दिख जाता है ना मास्टर में। हाँ वो तो दूर से चमक जाता है। इज इंग्लिश कंपलसरी? या कंपलसरी, नॉट कंपलसरी बट इट्स मैंडेटरी टू, जरूरी भी है ना सर? या ओके, so let's back to our next question, sir. How proud and responsible is it work on Indian naval warships? I would like to know about your experience and any of the incident that took place under your command. So please tell us. Okay. So it's a very proud feeling, to serve on board On warships. crores of warship. Okay. Yeah. It's a very proud feeling. And when I used to wear my uniform daily in the morning, I used to see myself in mirror. I used to feel very proud of myself कि यार I am amongst the 58,000 people who are wearing this uniform right now. Oh, that's 130 बिलियन की आबादी में कुछ 58,000 लोग ही हैं जिन्हें ये वर्दी पहनने का प्रिविलेज है, और मैं उसमें से एक करेक्ट। that's a तो proud ये feeling. एक्चुअली बहुत प्राउड फीलिंग है। और आपको जो जहाज है, पानी का लड़ाकू जहाज है, उसके अंदर जितने भी आपके जवान हैं, सेलर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, शिप की सेफ्टी, एमुनेशन, तेल, सब जो भी सामान है, सबकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एंड ऑन टू दैट योर मैरीटाइम बॉर्डर्स, योर मैरीटाइम डोमेन, उस वेपन को यूज करके आपको जिसकी रक्षा करनी है, जिसका ध्यान रखना है, तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ
इसलिए नेवल ऑफिसर्स हैव गोल्डन स्ट्राइप्स, Exactly. राइट? Yeah, I बिकॉज totally इट्स अ agree. बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल्ड इज अ बिल्कुल बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? बिल्कुल सर. So Okay. I'll tell you one of my incident. I mean, Under your command, yes. yeah. तो कभी कभी क्या होता है, यंगस्टर आते हैं सेलर्स काफी, तो उनको लगता है कि वो और भी कहीं जाके अच्छा कर सकते थे। तो ऐसे ही एक बार मैं एक्सो था एक शिप में, तो वहां पे एक टकराया मेरे से, एक हरियाणा का, ठीक है? Jack. तो वो हरियाणा वाला काफी एंग्री मैन था, और उसको ऐसा लगता था कि वो आईएएस ऑफिसर बन सकता था, वो यहाँ गलत आ गया, ऐसी ऐसी चीज। आई आई स्पोक टू हिम, आई सेड सिट विद हिम, आई स्पोक टू हिम, आई टोल्ड हिम कि ऐसा नहीं है कि तुम कहीं अच्छा नहीं कर सकते, तुम हर जगह अच्छा कर सकते हो, तुम्हें किसी ने मना नहीं किया। इनफैक्ट यहाँ पे भी यू कैन बिकम अ ऑफिसर, nobody is बिल्कुल stopping you, there are enough opportunities. You might have entered as a sailor now, but if you are capable enough to become an officer, you can become. There are enough opportunities inside service. You study, you spend your time, and then you claim what you are here for. okay. Exactly, that is CW exam, departmental exams are there for from joining to Yeah, sailors, and let's you go for the commission entries. correct. Not only in Navy, you can switch to other services Other also. forces too, yeah. Forces and You services can too. switch. Yes, you can switch to other services also. If you think you can become an officer in Air Force, you can become. There is no issue. Exactly. If you are capable, आप में क्षमता है, आप कर Yes, सकते हैं. बिल्कुल 100%। आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर है सब कुछ, वो मैंने बोला आपको, आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर है सब कुछ। द टाइम यू रियलाइज फॉर व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, यू विल अचीव वॉट एवर इज देयर फॉर यू। Exactly, all depends on you. करेक्ट। आपको ही करना है. Okay, sir. As you have served on board on different class of warships like INS Jalashwa and INS Kesari, can we get to know about the best time you served on board on which ship, sir? What's your favorite ship? ओके, जहाँ आपने सर्व किया है. नाइस क्वेश्चन। आई विल टेल यू, आई फील कि best time is when you have the toughest time, right? Because when you are in toughest situation or Situations. scenario, you learn the best. That is the only time when you learn the best, right? जब Yeah. आप सबसे टफ सिचुएशन में हैं, तभी आप सबसे बेस्ट चीज करेंगे, राइट? तो one of my picture you have shared, that is on INS Battimal, right? Yeah, Batti Malve, And yes. yeah, Easy, correct. sir. So I was NO of that ship at that point of Oh, time. I was a navigating officer, yeah. young lieutenant, and I was NO of that ship. For viewers who are watching this, NO is navigating officer. Navigating It's a officer, yes. नौ संचालन अधिकारी, जिसका Yeah, that's it. और हिंदी. जिसका जिसका रोल होता है शिप के पूरे ऑपरेशन को प्लान करना, प्लान करना. राइट? So this is one of the toughest appointment on board a warship. I'm telling you, this is one of the toughest appointment. And additionally, because it was a ship where not many specialist officers were there, I was handling 8 other profiles as well. Oh, And being a non-specialist, I was also learning at that time. तो आप सोचो कि मैं कितने डिपार्टमेंटों की पढ़ाई एक साथ प्रैक्टिकल तरीके से मैं कर रहा था। तो that's a वो huge responsibility. तो वो अपॉइंटमेंट जो था मेरा सबसे टफेस्ट अपॉइंटमेंट था। एंड आई रियलाइज्ड आफ्टर दैट अपॉइंटमेंट, हाँ, ऑन बोर्ड दैट शिप आई यूज्ड टू से कि यार मैं तो भाई साहब बैंड बज गई मेरी। लेकिन देन व्हेन आई डिड दिस अपॉइंटमेंट, व्हेन आई वेंट अवे, आगे चला मैं और दूसरे अपॉइंटमेंट्स के, देन आई रियलाइज्ड कि दैट अपॉइंटमेंट वाज द बेस्ट अपॉइंटमेंट, बिकॉज आई लर्नड अ लॉट Exactly. अबाउट मी, हाउ टू You're वर्क, learning व्हाट there. इज वर्क कल्चर, प्रैक्टिकल नॉलेज। सी, किताबी ज्ञान जो होता है वो किताबी ज्ञान होता है, एंड बिल्कुल सर. प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो Practical प्रैक्टिकल knowledge. नॉलेज। तो आई हैड एंजॉयड माय बेस्ट अपॉइंटमेंट ऑन INS Battimal.
Okay, sir. That's great. Because practical knowledge is very important if you are serving on a ship, if you are in our armed True. forces. Okay. So, sir, it was commendable work of providing civil aid to the stranded tourists in Havelock and Nile Island. What were the challenges faced by you and your team while executing the task of rescue operation? Challenges were many. The first and foremost challenge was the weather, जिसके कारण हमें जाना Exactly. पड़ रहा ठीक है. Winds, sea, rough sea, huge waves, and onto that you have the 300, 400 civilians who are very much terrified because of the weather, and untrained civilian police, Exactly. untrained. They One were minute, sir. One totally minute, sir. unaware One what they are minute. supposed to do. One minute, sir. Hmm. Someone is asking HADR, so let me tell him. HADR is the Humanitarian Assistant Disaster Relief. That's the full form of HADR. इसमें आप अगर किसी भी चक्रवात तूफान अगर चीजों में फंस जाते हो तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है इंडियन नेवी के थ्रू उसको HADR ऑपरेशंस बोला जाता है. ओके सर, नाउ कंटिन्यू. Yeah. So when we went there, we had faced many challenges. Challenges means कि हम वहाँ गए, हमने देखा कि the depth was very shallow. तो हमारे शिप की जो डेप्थ कैपेबिलिटी है कि इतनी शैलो डेप्थ में शिप नहीं जा सकता, तो वी हैव टू बी थोड़ा सा दूर खड़े रहना पड़ा, एंकर पे जाना पड़ा. फिर हमें ये डिसाइड करना था कि अब उस आइलैंड पे से वो सारे टूरिस्ट को लेके कैसे आएंगे, क्योंकि वेदर खराब है. एंकर पे भी शिप जो है वो थोड़ा सा हिलते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द रोलर पिच. वेव्स मूवमेंट. हाँ, शिप एग्जैक्टली. रोल पिच करता है. तो अब कैसे करें. अच्छा, हर शिप पे बोट्स होती हैं, पर हमारी जो बोट्स हैं वो दूसरे तरह के ऑपरेशंस के लिए बनी होती हैं. ये टूरिस्ट को 200-300 टूरिस्ट को बैठा के लाने वाले ऑपरेशंस के लिए नहीं बनी होती. तो अब ये क्या किया जाए, इनको कैसे लाया जाए. तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया, डायरेक्ट किया कि आप जाइए वहां पे, देखिए, असेस कीजिए सिचुएशन क्या है, एंड देन टेल मी द प्लान, मेक अ प्लान एंड टेल मी द प्लान, and then we will go ahead with the plan after assessing that. तो I went to the jetty. I realized कि बहुत ही ज्यादा terrified थे वहाँ पे टूरिस्ट जो थे, अलग अलग स्टेट से थे, कोई कहाँ से था, और most of them were couples जो आए थे शादी के बाद. तो वहाँ, हाँ, अब वहाँ पे पुलिस बहुत कम रहती है, पुलिस 4-5 पुलिस वाले थे. तो आई आस्क्ड देम कि भाई आपके पास कितने टूरिस्ट हैं. मैंने पुलिस वाले जो सीनियर मोस्ट पुलिस वाला था वहाँ पे, सबसे पहले उसको बुलाया. ऐसा ही था वो, सब इंस्पेक्टर. आई आस्क्ड हिम कि आपके पास यहाँ पे कितने टूरिस्ट हैं, आपको कितनों को रेस्क्यू करना है, आप ये बताइए. तो ही वाज नॉट हैविंग अ करेक्ट नंबर. ठीक है. एंड उनको शिप तक कैसे ले जाना है, दैट वाज अ चैलेंज. अब वो कैसे लेके जाएंगे. तो आई आस्क्ड देम कि इट्स हैवलॉक आइलैंड, इट्स अ वाटर स्पोर्ट्स आइलैंड. यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं. वाटर स्पोर्ट्स में आपके पास में यहाँ पे बोट्स होती हैं, सब चीजें होती हैं. तो वेयर आर द बोट्स, कॉल द बोटमैन. खाली पैसा कमाने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं यहाँ पे. अब जब इन टूरिस्ट को बचाना है तो भी तो हमें आगे आना चाहिए. तो देन पुलिस वाले ने बुलाया 10-12 बोट वालों को, जिनकी बोट की कैपेसिटी अच्छी थी, 20-20, 30-30 लोग बैठ सकते थे. तो हमने उन बोट वालों को बुलाया, मैंने उनको ब्रीफ किया. आई रिक्वेस्टेड देम कि यू कैन असिस्ट दीज टूरिस्ट, दे हैव मेड यू मनी, नाउ इट्स टाइम टू पे बैक. आप उनकी जान बचाइए, आप उनको बचाइए. तो उन्होंने मेरा काम माना, बोट वालों ने, और सभी ने मिलके फेरी स्टार्ट की, जेट्टी से लेके हमारे शिप तक. एक बार में 20-30 टूरिस्ट को ले जाते थे. सबसे बड़ा एक और ट्रबल मैंने देखा कि टूरिस्ट के साथ में इतना लगेज था, तो वो लगेज भी हमको बोट में सेट करना था, बहुत लगेज था. बट फाइनली वी अचीव, या but finally we achieved, and we get every single tourist on board our ship. We provided them water, food and medical aid, whatever was their requirement. Few of them were old age, जिनको रेस्ट चाहिए था, तो उनको सोने के लिए, आराम करने के लिए हमने, हमारे जवानों ने अपने बंक खाली कर दिए. हमारे सेलर्स ने, उन्होंने बोला कि सब इधर सुलाइए, यहाँ पे आराम कराइए. That's why we say that service before self. Yes. So each and every tourist were taken care of very well, and we deboarded them.
to Port Blair safely, and they were very happy when they were departing from our ship. They saw us saluting our ship while coming on board, gangway pe. That's a proud So feeling. yeah, so they also did it. They also did it. They asked us why you are doing it. So we told them, we respect our ship because this is our weapon. And they also knew. They once they knew it, they also did it. They saluted everybody. So that was a very proud feeling. Challenges were there, but see, challenges हर जगह होते हैं लाइफ में. बिना बिल्कुल. challenges की कोई लाइफ नहीं होती. But a man or a woman who overcome the challenges with their sharp mind, with their reactions, with their knowledge, that is the most important point कि आपको challenges से डरना नहीं चाहिए कभी. अभी हमारे पास भी इतना बड़ा challenge था, technical glitch हो गया था हमारा, बिल्कुल. but we हमने हार नहीं माना सर. yeah, we overcome the challenge and we are right now live on Indian Navy level. We are addressing the peoples right now. Yeah, right. हम हार मानने वालों से है भी नहीं. Okay, sir. How can I join Navy? Log on to the official website and check your eligibility. So, sir, our next question is: during your operation on Havelock and Neil Island, you have saved more than 1,000 tourists from cyclone, and for that you were awarded. There is CNC commendation. Can I ask about your experience of that mission and the time that you were awarded? It's one of your best achievements, sir. How do you feel that time? What I would like to say one more thing in there, that not for this particular operation, I was awarded, but it was a overall performance also. Performance. So there total service record. Yeah, there were other incidents also for which I was awarded, which I cannot disclose here because they are service operations. But yes, I was awarded by the then Sinken. He was a vice admiral. So I was a vice admiral. He was a CNC of Andaman and Nicobar Command, and I was CNC Chief of Naval Commander. People are asking what is CNC. People are asking what is CNC. What is CNC? Chief in Command. Chief in Command. Commander in Chief. Commander in Chief. Yeah. Commander in Chief. CNC is Commander in Chief. And we call Andaman Nicobar Command के जो हमारे CNC हैं उनको हम सिनकैन बोलते हैं. सिनकैन या Commander in Chief Andaman Nicobar. Andaman and Nicobar Command. बाकी बेसिस के तो FO CNC है, Flag Officer Commander in Chief. Correct. Yeah. Okay, sir. Continue. So I was awarded a Sincan commendation on 15th August 2016 on the occasion of Independence Day. Yeah. So what I would like to tell you is किसी एक चीज के लिए फौज में अवार्ड नहीं मिलता. फौज में आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर आपको अप्रिसिएशंस मिलते हैं. एंड आई टेल यू कि अप्रिसिएशन अगर फौज में मिलता है तो बहुत मायने रखता है. बिल्कुल सर. ये बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है और आपको ऐसा लगता है कि यस, जब आप यहाँ पे लगाते हैं ना अपने यूनिफॉर्म पे तो बहुत ही प्राउड फीलिंग आती है कि यस, काफी प्राउड फीलिंग होती है वो. So sir, we got to know that sir you were a specialist in UAV operation. How is it likely to operate a UAV? Is it same as remote controlled plane or drone something? See, drones what people are using right now are they are like toys. छोटे होते हैं. Toys, exactly. ठीक है. So UAVs are something big. What's special in them is पहले जो UAVs इनिशियली जो बनाए मैन्युफैक्चर हुए उनमें रिमोट वाज देयर. रिमोट इज स्टिल देयर, बट नाउ रिमोट्स आर ऑफनली यूज्ड. Most of the UAVs are handled by pilot type console. एक operator console होता है, उन्हीं से ही करते हैं. It's same like what we used to have in aircraft, but it is on ground. That's it. It is on ground. You don't have to board the aircraft. The entire console, operator console, is available on ground, and you have to operate from there that aircraft.
you will have every visual, every you know उसके parameters, you will have everything on your screen and you can easily operate from that place. So how is it useful for ships, sir? Pardon? How is it useful for ships? UAV? UAV for How UAV for ships. you can use in ships, sir? It's air Right operation. now, right now, I don't think we are not using any UAV for ships. Actually, see, there are two types of aircrafts. One is fixed wing, and the other one is rotor. Rotor is like helicopters, right? Yeah. So from ship, if you say, so you can operate rotors, and there is an exception, that is aircraft carrier. तो वहाँ पे runway का restriction is there. You have to calculate what is the runway and what you can do, how you can manage Yeah, yeah. the UAV, fixed wing UAV from that runway. That technical parameters are there. तो वो तो expertise हैं जो decide करेंगे कि करना है कि नहीं करना है and how safe it is, right? Main safety matters, sir. Yeah. Very. Okay, sir. So I would like to know more about your interactions regarding foreign navies and integrated exercises. If any funny or memorable incident that took place, we would love to listen it, sir. Okay. So with foreign navy, I had a lot of interaction with foreign naval officers and sailors. So primarily what I could observe in them is they are very they see with more respectable feelings to us Indian Navy officers and sailors. Yeah. उनके अंदर बहुत रेस्पेक्ट है हमारे लिए. ये एक चीज मैंने देखी. अच्छा, you had asked me about an incident. The incident I will tell you है. बहुत amazing incident है. ठीक है. Okay. Whenever we are exercising with foreign navy, तो कोई भी फॉरेन नेवी का ये ट्रेडिशन है कि एक्सचेंज करते हैं एक ऑफिसर इधर से उनके शिप पे जाता है, उनका एक ऑफिसर हमारे शिप पे आता है, उसको सी राइडर बोलते हैं. तो मुझे भी ये सम्मान मिला एक बार जाने को थाई नेवी के शिप पे. ठीक है, थाई नेवी के शिप पे हम चले गए, थाईलैंड नेवी के शिप पे. अब थाईलैंड नेवी के शिप पे हम चले गए, पर हमने पहले ये सोचा नहीं कि वो थाईलैंड नेवी वाले हमें खिलाएंगे क्या. तो वहां पहुंचने के बाद पूरा दिन हमारा अच्छा बीता. ब्रिज में हमने पूरे एक्सरसाइजेस वगैरह सब करी, उनसे बातचीत भी कर रहे थे क्योंकि टूटी फूटी इंग्लिश वो भी अच्छी बोल लेते हैं. तो जब लंच का टाइम हुआ तो दे इनवाइटेड मी कि सर लेट्स हैव लंच टुगेदर. तो आई टोल्ड देम ओके लेट्स गो. तो आई सैट देयर एंड मैंने देखा मेरी प्लेट में वो आ गया, पोर्क आ गया. तो मैंने कहा ये क्या है. तो मैंने कहा ये क्या है, मुझे पता नहीं था तब. तो आया व्हाट इज दिस. तो दे टेल पोर्क. मैंने कहा नो आई एम अ वेजिटेरियन. तो आई एम अ वेजिटेरियन, आई डू नॉट ईट नॉन वेज. तो दे वर रियली शॉक्ड. तो दे आस्क्ड मी व्हाट डू यू वांट टू ईट. मैंने बोला कि यार वेजिटेरियन लाओ कुछ. तो वेजिटेरियन में वो मेरे लिए लेके आए एग का कुछ बना के लेके आए. वो उनके लिए वेजिटेरियन था. वो उनके लिए वेजिटेरियन था. Then finally I had to pass a message to my ship कि भैया यहाँ तो मेरा बंटा था, मेरा हो जाएगा, तेरा कुछ हो जाएगा, तो जरा मेरे लिए कुछ भिजवाओ. तो मेरे लिए मैगी आई. फिर वहां से मेरे शिप से मेरे लिए मैगी. ऑन बोर्ड मैगी की मजा ही अलग है सर. ऑन बोर्ड मैगी का मजा ही अलग है. मैगी सबको जिंदा रखती है, तो मैगी ने हमें भी जिंदा रखा वहां पे और बड़ा मजा आया मैगी खाने के. Even I had Maggie in INS Ranveer. अरे वाह. अच्छा, they after looking at my Maggie, they told me कि oh you want to eat noodles, so you should have told us we have chicken noodles. तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं वेज ही खाता हूँ. नूडल्स में भी उनके पास में चिकन नूडल ही थे. तो मैंने कहा नहीं मेरा ये वाला नूडल मैं खाऊंगा आराम से, मटर और गाजर वाला. धर्म भ्रष्ट हो जाता उस दिन तो फिर. हाँ, फंस जाते हैं थाईलैंड वाले. ओके सर. हाँ, ये फॉरेन नेवीज के साथ में एक्सरसाइज करते हैं, तब ये जो वेजिटेरियन जो जितनी भी पार्टी होती है उनको ये सब चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि अपना राशन खुद लेके जाना है.
ये तो कब इधर का उधर हो जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा. हाँ, करेक्ट करेक्ट. In foreign navies. या Okay, sir. So tell us more about executive branch in Indian Navy, sir. How does it work and what's the main work of in pardon, executive can you branch? repeat your question, Adarsh? Yes, sir. But tell me more something about executive branch in Indian Navy. Okay. See, every organization is a mixture of something. ठीक है, कुछ कुछ एक एक आर्म्स होती हैं, सब मिक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है. तो बट उसका एक मेन जो होता है रीढ़ की हड्डी, या आप कह लो नर्वस Backbone. सिस्टम, वो एक ही होता है. बैकबोन या नर्वस सिस्टम एक ही होता है. तो लाइक हमारी बॉडी में है, आंखें हैं, कान है. एक आंख नहीं होगी तो चलेगा, आंख कान नहीं होगा तो चलेगा, ठीक है. बट अगर नर्वस सिस्टम डाउन हो गया तो बॉडी नहीं चलेगी, कुछ नहीं बॉडी कोमा चलेगा. में चली जाएगी, बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, राइट. तो दैट इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ नेवी. बिल्कुल एग्जीक्यूटिव sir. ब्रांच It's the is the lifeline of Indian nervous Navy. system You can say of that. entire Indian Navy. So executive branch is responsible for running the entire show, entire Indian Navy. Okay. जो भी प्लानिंग है, जो भी ऑपरेशंस हैं, जो एग्जीक्यूशन है, एवरीथिंग इज डन बाय ऑफिसर्स बिलोंग्स टू एग्जीक्यूटिव ब्रांच. नाउ इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है अलग अलग स्पेशलाइजेशन में, लाइक अ गनरी ऑफिसर, अ नेविगेटिंग ऑफिसर. These all officers are anti-submarine warfare officer. All are executive officers, Executive but branch. then Yeah. they are specialized into something. An executive officer can become Marcos also. An executive Yeah. officer can become a pilot also. An executive officer can become an observer also. Sometimes on board small ships, an executive officer becomes PO. engineer officer also, Oh, technical engineer. officer also, right? Technical PO. So that all I have gone through that also. I have become engineering officer of my small ship also, right? So Okay. that's why I'm telling you, it is nervous system. An executive cannot have any excuse. He has to go with the flow. उसको सब सीखना है और उसको सब करना है. करना है बिल्कुल. या एक और बहुत करवाना भी है. कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. नेवी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. जैसे हमारी एक लाइफ होती है, हम यहाँ पे सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, घर पे आते हैं, ये जो भी हम कैरी आउट करते हैं हमारा रूटीन वर्क, ये एक सिस्टम है. ऐसे ही नेवी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. नेवी की एक अलग लाइफ है, मरीन लाइफ, वो एक अलग लाइफ है. वो लाइफ जो है वो रन करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच का ऑफिसर. जितनी भी एग्जीक्यूशन पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पास में होती हैं, राइट. That's great. So you can take it as an infantry of army. The Yeah, you main can say that. fighting arm of Indian Navy is executive. Executive branch. Okay, sir. So, sir, currently you are a security manager at Canara Bank. What made you go for banking services after retired from Indian Navy? Were you Okay. pre-planned for that? So actually, before retirement only, I had decided that I will, now I will collaborate and give my services again to banking industry, because you have to have a motivation for each and everything. So for banking, to join banking industry, my motivation was my father, Oh, okay. because my father is a banker. He's a retired banker, and maybe से पहले भी he had inspired me to join bank, and That's now why you joined after HDFC, right? again he had inspired me to join bank, so I had joined banking. The difference is when I went into banking before joining Navy, it was in a profile of general banker, and now after Navy I am into a different profile. That's a specialist profile. This specialist profile is only available, accessible to retired armed forces officers, and Excellent. all national banks, all banks comes under government are giving this profile to retired commissioned officers. Okay. That's great, sir. It's a very huge responsibility
काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लिए उदयपुर हाँ, ब्रांच में संभालना। यहाँ यहाँ तो पैसे इन्वॉल्व है ना, पब्लिक मनी इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली, काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। सो सर, द एक्सपीरियंस यू हैव gained from Indian Navy, and what message you want to give to youth regarding it, to our viewers and our aspirants community? What experience you want to, and what message you want to give to all? I would say, see, if you have decided that you want to join Navy, then nothing, remember, nothing should come in between you and Navy. जो भी Exactly. challenges हैं, जो भी anomalies हैं, वो आपको overcome करनी है, वो Navy नहीं कर सकती, वो आपको करनी है। आपको अपने गोल के पास पहुंचना है, आपको अपने टारगेट को अचीव करना है, एंड यू शुड नॉट हैव एनी एक्सक्यूज कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, मैं फिटनेस में परफेक्ट नहीं हूँ, या मैं पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाता। ये सब एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। अगर आपको टास्क अचीव करना है तो आपको करना है, दैट्स इट। और ये जो अपना फौज में आपको, यू डोंट हैव टू बी अ मास्टर इन स्टडीज और यू डोंट हैव टू बी अ मास्टर इन फिटनेस, यू हैव टू बी गुड इन ईच एंड एवरीथिंग। आपको सब कुछ आना चाहिए। Exactly. यू हैव टू एक बी स्टैंडर्ड, जो रिस्पॉन्सिबल। स्टैंडर्ड को आप मेंटेन यस, करो, then you are करेक्ट, करेक्ट। एंड यंगस्टर्स, मैं आपको एक चीज मैं सिर्फ आपको एक चीज यही बोलूंगा कि जो मैंने भी रियलाइज की थी कि जो हमारी टीन एज होती है, या जो हमारी एक यंग एज है, जिसमें हम इस देश के लिए, हमारी मदरलैंड के लिए, हमारे मदरलैंड के लिए कुछ कर सकते हैं, और हमारा खून गर्म है, हमारे अंदर वो जो ऑफ नहीं होना चाहिए, हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर कोई आपको बोले कि नहीं फौज में जाओ तो खतरा है, कोई है, तो आप बोलो कि मैं खतरे से नहीं डरता। ठीक है, खतरा हर जगह है, कहाँ नहीं खतरा है सिर्फ खतरा? फौजी को, खतरा हर जगह है। अभी तो खतरा डरने का हवा में नहीं है। है। यस, डरना नहीं है, डरना नहीं है कभी भी। और जो अपना टारगेट है उसको अचीव करो। फौज की नौकरी भारत में सबसे अच्छी नौकरी है, ये मैं आपको या सारे यंगस्टर्स को फिर बताता हूँ। ये आपको जिंदगी जीने का एक सलीका सिखाती है, एग्जैक्टली। और आपको जेंटलमैन बनाएगी। एंड बिलीव यू मी, जब आप एक बार फौज में भर्ती हो जाएंगे, आप ट्रेनिंग अंडरगो कर लेंगे, आप अधिकारी बनेंगे या आप जवान बनेंगे, और आप रिटायर होंगे, तो आप खुद बोलेंगे ये बात कि फौज से अच्छी नौकरी और दूसरी नहीं, नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, राइट सर? करेक्ट, ये करेक्ट। Okay, sir. So thank you so much, sir, for giving us your precious time. Thanks a lot. थैंक यू And आदर्श, salute. थैंक Jai यू, Hind, थैंक यू sir. आदर्श, Thanks for your service थैंक to our यू। nation. आई And one more होप, thing, sir. And one more thing, sir, कि मैं जब आपके प्रोफाइल को विजिट कर रहा था अपने ट्विटर से एंड सोशल मीडिया टू इंस्टाग्राम, देन अब आपने जो ये पुराने किस्से होते हैं सर राजस्थान के, राइट, जो धर्म के प्रति, नॉट ओनली धर्म, राइट, इट्स ओनली, मतलब जो जरूरी है लोगों को जानना चाहिए हिस्ट्री, जो हमने पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं। तो मैंने भी काफी कुछ सीखा सर आपके प्रोफाइल से। इवन मैं तो आपको जानता था, बट मैंने प्रोफाइल को तो देखा बाद में, लेकिन जब प्रोफाइल को मैंने देखा, दिस वेरी, जो कहानियां हैं, लोक कहानियां जैसे हैं, जो राजा हैं उनके जो भी हैं, बहुत अच्छी कहानियां सर, काफी इंस्पायरिंग थी, जो जरूरी है लोगों को पता चलना चाहिए। हम उन सबको अवॉइड थैंक करते हैं यू। सर, आजकल का कल्चर यही है, हम अवॉइड करते चले जा रहे हैं। थैंक्स टू यू सर, आपने उस इन्फॉर्मेशन को मुझ तक तो पहुंचाया, ना जाने और लोग तक पहुंचेंगे। मैं बोलूंगा प्लीज विजिट सर प्रोफाइल and check out his profile and go and follow him. Okay. Thank you, Thank you, thank sir. you, Adarsh. Thank you very much. Thanks to all viewers. Thanks to all Indian Navy lovers. And you just make a goal. You have to wear that whites and blues. Do not deviate from your task and mission. Right? Exactly, sir. Okay, sir. Let's कुछ questions ले लेते हैं sir last moment पे. Yeah, sure. Okay. Someone asking me suggest me a book regarding SSR or PFT. So you can. Okay. हाँ, okay. So I already told you in the beginning, my father bought me a 20 50 rupees book. I never opened it only. So please do not ask me about books.
that information you can get from Google. Exactly. Nowadays you can use Google. That time उस time Google नहीं होता था. Possible नहीं था Yeah. Google use करना होता all the time. Like, see, study material is available everywhere. Okay, it's you have to see what is available to you and what is relevant to you. You don't have to read everything and anything. कुछ चीजों में आप बहुत अच्छे हो सकते हो जिनको बिना पढ़े भी आप वहां पे जाके सॉल्व कर सकते हैं. टेल यू ना, वहां पे एग्जाम होते हैं. मैंने बुक Exactly, sir. रीड नहीं करी हुई, बट वहां पे जितने भी एग्जाम होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, पिक्चर वाला एक टेस्ट होता है, स्टोरी राइटिंग एंड ऑल थिंग्स, यू डोंट हैव टू रीड एनी बुक फॉर दैट. Exactly, sir. You, So one more you have question, to be sir. positive. You have to be positive, confident, and your ability to solve things Exactly. should be available to you. Be gentle and be perfect. Be yourself. जो हो वही दिखाओ वहां जाके. कोई जरूरत नहीं है शो ऑफ करने की. Correct. क्योंकि आपको एक वहां जो चाहिए उनको पता है, वो आप एंट्री करते हो ना. मैंने बोला था सर आपको कि गेट पे खड़ा बंदा बता देता है, जो डीएससी होता है ना, वो बता देता है कि ये बंदा रिकमेंड होगा, मतलब ज्वाइन करेगा या नहीं कर पाएगा, या कॉन्फ्रेंस आउट होकर वापस जाएगा. Correct. आपका तरीका बता देता है. Yes. Okay, sir. And there is one more question, sir. What do we do if we don't fit in the height standards? You can do exercise, try to reach that particular height. See, if you are going for Navy, I don't think as an officer entry there are any height standards. If you are capable, क्योंकि आप young age में जा रहे हैं, it depends upon your age also ना. If you are joining in your early ages like 16, 17 या 18 में आप join कर रहे हो, तो height तो वो जाती है और ऊपर जाती है, कोई issue नहीं होता उसमें height का. I don't think so कि वहाँ पे कोई मेडिकल में कोई आपकी हाइट मेजर करने बैठेगा कि नहीं आपकी हाइट कम है तो आप नहीं आ सकते. I am 175 centimeters in height and it is good average height, right? You don't have to be 6 feet tall into armed forces. I told you ये चाहिए ये बस. बिल्कुल बिल्कुल. और ये चाहिए और क्षमता चाहिए जो आपके पास है. Capabilities matters. Capability होनी चाहिए. Okay, sir. Let's wrap up. Thank you so much, sir. Thank you once again for joining us today and giving us the Guru Gyan too. Thanks for sharing your experience here. And very soon we will catch up, sir. I'll be there. I'll be on Udaipur soon. Oh, very nice. Let me know whenever you are here. Oh, okay, sir. And thank you, Indian Navy lover. Thank you, all Indian Navy lovers. I am available to you. If you have any doubt, if you need any motivation, let me know. Because my aim is that no stone should be unturned. अगर आप फौज में जाने का लक्ष्य साध चुके हो, तो आप अपने लक्ष्य को अचीव करिए, आप पीछे मत रहिए, right? बिल्कुल. So guys, if you have any queries and any questions, then please DM Ankur sir, and you can follow him on Instagram. That is Ankur Patanwala. You can see the username swiping on the left side. Even I'll post a story regarding it. You can check there. Okay, sir. Thank you so much, sir. And Jai Hind once again. Thank you. Lovely interacting with you. Jai Hind to you all. Jai Hind. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Please share the experience during this session. Please बताइए कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, and कैसा था, inspiring session था कि नहीं था. That's all. Please tell us the experience regarding this session and DM and mail us. So very soon we will come back with the next session with next naval officer very soon on the Sea Warrior Tales. Thank you all. Jai Hind.